Today's video is about finding square root of a number by square root of a perfect square number by division method. Yeah, not only perfect square number, we can find the square root of any number, whether it's a perfect square number or a non-perfect square number, or up to certain places of decimals. And also we can find the square root of the numbers in decimal or square root of numbers in fraction. But the method which we are going to use will be the long division method or the division method. Okay, so the steps are written over here, but I'm sure that reading the steps and doing the question, both are different experiences. So we'll directly go and look at one of the example and find the square root by using the long division method. Okay, the first number is 7056. Let's start with this example. Let me zoom out a bit. Cool. So square root of 7056. So first thing what we do is we take the number and we group it into the groups of two numbers. Okay, so we group it right from the right side and move ahead by grouping it towards the left side. So this is the right side 56, and then we go towards the left side, that is 70. Okay, so 56 is one group and 70 is one group. Then we make this kind of structure inside which we are going to do our long division. We write our number in the groups 70 and 56, so 7056. Now our first group is 70. This is our first group of number. The question we need to ask ourselves is, which is the closest perfect square number, closest and smaller perfect square number than 70. 70 से छोटा और उससे closest perfect square number कौन सा है? So you can find the perfect squares like 6 6 are 36, 7 7s are 49, 8 square 64, 9 square 81. But wait, 81 is greater than 70. So we'll stick to 8 square 64. So 8 8s are 64. So this will be 6. 56 will come down. 56 will come down and we'll get a number 656. Okay, 8 will be added over here and we'll get 16. Yeah, so this is one more formality that we need to learn. Whichever number you get here in the quotient, sorry, in the divisor, you have to add that divisor with a number in its units place. So the number over here is 8. Which is the number in the units place of 8? 8. So you add 8 with 8, and 8 plus 8 will give you 16. Okay, so this is your new divisor. No, wait, this is not your new divisor. So what you're going to do now, you're going to put a number over here in this space. Why I wrote 8 plus 8, 16 over here? There is a meaning behind it, because I left space for one more digit which I'm going to add over here. I'm going to write over here and I'm going to make it a 3-digit number. But the condition is कि जो नंबर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसी नंबर से मुझे ये नए 3-digit नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल 16 के आगे अगर मैं 1 लिखूंगा तो 161 मेरा न्यू 3-digit नंबर है, उसको मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आई गेट 161. अगर मैं 2 लिखता हूं तो 162 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 162, 2 2s are 4, 6 2s are 12, and 2 1s are 2 plus 1, 3, 324. ठीक है, तो कौन से नंबर को मुझे यहां लिखना है और किससे मल्टीप्लाई करना है ये 3-digit नंबर को, दैट हिंट यू कैन गेट बाय लुकिंग एट दिस नंबर. दिस नंबर इज 656. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टारगेट के यहाँ पे जो भी नंबर तुम लिखोगे, ठीक है, उसी नंबर से तुम ये 3-digit नंबर को मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल राइट इट ओवर हियर, राइट. सो सपोज you write 164 4s are 4 4s are 16,
1, 6 4s are 24. 24 plus 1, 25. 2 will go over here. And 4 ones are 4 plus 4 ones are 4 plus 2, 6. Surprisingly, I get the same number which I've got over here. So 164, 4s are 656, and the remainder is 0. Right? So you have to perform this long division till you get the remainder 0. So sometimes if this number is not a perfect square, you will never get the remainder 0. In that case, you have to find the square root correct up to 2 decimal places. Correct? But here you've got the square root. This quotient which you see over here is the square root of the number. So you can write it as root of 7056 is equal to 84. Okay, so that's one example for you. I'll take one more example. One more example I'm going to take of 17956. We have to find root of 17956. So what we'll do, 17956, we'll do grouping. Okay, so group of 2, and 1 remains alone. So you group from right to left side in the group of 2, and if the last number remains alone, let it be, not a problem. Okay, now make your structure inside which you will perform the long division. You write your numbers 17956 groups. Now the first group is of 1. Which number is a perfect square number near to 1 or smaller than or equal to 1? 1 ones are 1. That's the first number. So what you do is 1 minus 1 0, and you bring down the next group altogether. So 79 comes down. Here, what is the number in the units place of this number? It's just one digit. Unit place has 1. So add 1 over here and write 1 plus 1 2 over here. Okay, now you need to multiply a number, you need to add a number over here in this space and multiply the 2-digit number with the same number which you have obtained here. So let's say 22 twos are 44. No, 23 threes are 69. Yeah, 69 is fairly close to 79. 24 fours are 96. No, I'm going to choose 23 threes are, which is 69, which is smaller than 79 and closer to it. So 23 threes are 69. When I subtract, I get 10, and the next group comes down right away. That is 56. Now, here the number is 23. Which number is in the units place of 23? 3. So just add 23 with 3, you get 26. Write 26 to a little bit left side, and here you leave some space where you are going to put a number and multiply the 3-digit number thus obtained by the same number. Okay, so now see, I'll give you a hint. What do you see over here? 6. So in the product you want 6. Okay. Now we know that 4 fours are 16 and 6 6 are 36. 4 fours are 16 and 6 6 are 36. Both the numbers have got 6 in the unit place. So what you can do is you can find 264 fours are, and you can find 266 6 are. It will ensure that whatever number you get over here, in the unit place of that number you will have 6, and that's what you want over here. So first let's find 264 fours. I am quite positive about this. So 4 fours are 16, 1 6 fours are 24 plus 1 25, 2 4 twos are 8 plus 2 10, 1056. So 264 fours are 1056, and the remainder becomes 0. So the quotient with which you get 0 remainder is the square root. That means square root of 17956 is nothing but 134. Right? So this is your long division method for finding square root. Okay, now I'm going to show you a couple of questions
which are based on this long division method. So I'm not very keen on showing you long division all over again, because now you know what is long division and how to perform long division. Okay, so what I'm going to focus now is the type of question which we are facing. I'm not very much keen only on long division because that is very simple now. Also with practice you will get a hang of long division, but the kind of questions which we are going to face now are little tricky because they are not very straightforward questions of finding square root. Okay, so we need some extra attention on this. If you don't understand, please have a look at the video all over again and then try multiple times, and then definitely you will get the answer of these kind of questions. So let's try one of the question like this. The question is, find the least number which must be subtracted from 7581 to obtain a perfect square. Also find the square root of this perfect square. ठीक है, देखो बहुत इजी है. पहले तो जो नंबर है वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, हम लोग क्या समझ में आता है हमको, देखो मैं यहां पे लिखता हूं 7581 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. राइट, सबसे पहली बात 7581 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है. तो उसमें से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. वो कौन सा नंबर है ये हमें ढूंढना है, और फिर जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी ढूंढना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, परफॉर्म लॉन्ग डिविजन ऑफ 7581. ये जो पॉइंट्स है वो लिख लो क्योंकि तुम्हें काम आएगा. परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन ऑफ 7581. तो हम लोग क्या करेंगे, 7581 का लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे. और सरप्राइजिंगली ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमें समझ में आता है कि जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं है, वो क्या है 12. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप, फाइंड द रिमाइंडर. Find the remainder which is not equal to 0. रिमाइंडर ढूंढो जो जीरो नहीं होगा. ठीक है, अब क्या करेंगे, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम 7581. हमारा जो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू विल गेट अ न्यू नंबर 7569 एंड दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर. तो नंबर फिफ्थ क्या हो गया, यू विल गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है, मतलब तुम रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करोगे, जो तुम्हें आंसर मिलेगा ना, दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. मतलब तुम्हें आंसर मिल गया. द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 इज 12. इट इज द रिमाइंडर to obtain a perfect square. You got the perfect square. Now the square root of this perfect square वो तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है. वो जो तुम्हारा कोशंट है ना, कोशंट 87, वो ही परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है. मतलब 7569 का जो स्क्वायर रूट है वो ये कोशंट है 87. ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो मैं पॉइंट्स पूरे बता दे रहा हूं ताकि तुमको आगे सॉल्व करना इजी हो जाए. तो सिक्स्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, द कोशंट of long division obtained is the square root of the perfect square number. That's it. ठीक है, तो 6 पॉइंट्स में, ये 6 स्टेप्स में तुम तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. 6 स्टेप्स, ऑल यू नीड इज आर दीज 6 स्टेप्स. ठीक है, फिर से बता देता हूं मैं, सो दैट व्हेन यू गेट दिस क्वेश्चन यू आर नॉट कंफ्यूज्ड. यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड. ठीक है, प्लीज देख लो इसको, अच्छे से देख लो. यहां पे लिखता हूं मैं, तो पहले तुम्हारा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको ले लो, उसके ऊपर लॉन्ग डिवीजन कर लो. ठीक है, तो हमने अपना नंबर ले लिया 7581 और हमने उसका लॉन्ग डिवीजन किया.
कैसे किया लॉन्ग डिवीजन, अब वो तुम्हें आ जाना चाहिए। फिर तुम्हें ढूंढनी है रिमाइंडर जो जीरो नहीं होगी। अब रिमाइंडर को हमारे नंबर से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 7581 में से, तो तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर आ गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, वो है कोशेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दैट्स इट। इतना इजी है, सोचो इतना इजी है। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप वन क्वेश्चन, टाइप वन। अब टाइप टू क्वेश्चन पे मैं जाता हूं। वॉट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। उससे पहले क्या था, वॉट लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ये क्या है, वॉट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 2945। 2945 में कौन सा लीस्ट नंबर हम ऐड करेंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहां तो डेफिनेटली रिमाइंडर तो ऐड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे देखते हैं इसको। एंड व्हाट इज द रिजल्टिंग नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस रिजल्टिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप विच वी आर गोइंग टू डू, लेट मी नोट डाउन फॉर यू। The first step which you are going to do is perform long division of given number। तुम्हारे गिवन नंबर का लॉन्ग डिवीजन करो सबसे पहले। गिवन नंबर है 2945, डू द लॉन्ग डिवीजन। सो यू विल obviously find that long division is not possible and you are getting a remainder. Also, you are getting a quotient. Now, the next step is extremely important. Observe the quotient। क्वोशंट को ऑब्जर्व करो, क्या है क्वोशंट, 54। सो गिवन नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ क्वोशंट एंड द square of consecutive number of quotient, and the square of consecutive मतलब next number of quotient, square of quotient and square of consecutive number of quotient, उनके बीच में हमारा गिवन नंबर लाई करेगा। मतलब अगर नंबर अपना 2945 है तो इट विल लाई बिटवीन 54 स्क्वायर एंड 55 स्क्वायर। ठीक है, जो भी क्वोशंट में नंबर आएगा उसको ऑब्जर्व करो, उसको स्क्वायर करोगे ना तो तुम्हें 54 स्क्वायर मिलेगा, और you will note that this 2945 lies between this 54 square and the next number square। next number कौन सा है, 55 square। 54 square and 55 square। ठीक है, अब तुम क्या करोगे पता है, यू विल फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड। रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, तो तुम क्या करोगे, देखो 2945 में हमें कुछ ऐड करना है जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और अभी हमने पता लगाया कि 2945 लाइज बिटवीन 54 स्क्वायर एंड 55 स्क्वायर, मतलब उससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर इज 55 स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं। सो द नंबर टू बी एडेड इज, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, is obtained by subtracting our given number क्या है 2945 from square of just a moment। So the number to be added is obtained by subtracting our given number from square of
the next number of quotient. ठीक है, मतलब ये जो क्वोशंट है 54, उसका नेक्स्ट नंबर है 55। 55 के स्क्वायर में से हमारा गिवन नंबर 2945 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल फाइंड आवर रिक्वायर्ड नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 2945। तो 55 का स्क्वायर है 3025 minus 2945 is 80. That means 80 must be added to 2945 to make it a perfect square. तो ये तो आंसर मिल गया। अब जब 80 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ऑफ कोर्स 55 स्क्वायर ही मिलेगा, मतलब 3025 ही मिलेगा, है ना? और 3025 किसका स्क्वायर है? वी नो 55 स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर इज 55। मतलब आंसर हमेशा याद रखना है, ये जो तुम्हारा क्वोशंट है ना, उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें आएगा एग्जाम, मतलब तुम्हारे एक्सरसाइज में आएगा, टेस्ट में भी आ सकता है। ठीक है, दो और ऐसे एग्जाम्पल्स है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। वी डोंट नो, सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट? वी नो 9999। पहले तो 9999 को 9999 का लॉन्ग डिवीजन कर लो तो तुम्हें एक रिमाइंडर आएगा 198। सो हमें ढूंढना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, मतलब 9999 में से अगर 198 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, दैट इज 9801 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो वैसे ही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 जैसा, दैट विच नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट या 5 डिजिट या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज यूज द सेम मेथड। ठीक है, फर्स्ट परफॉर्म लॉन्ग डिविजन, देन फाइंड द रिमाइंडर, then subtract the remainder from the greatest 4 digit number, you will find the greatest 4 digit perfect square number or whatever the case is. The last one is also simple. Find the least number of 6 digits which is a perfect square. तो least number of 6 digits तो है 10 lakh, है ना? 10 lakh, 10 lakh है या 1 lakh? 10 लाख, राइट? तो सबसे पहले 10 लाख का लॉन्ग डिवीजन करो तो तुम्हें कोशंट मिलेगा 316 और रिमाइंडर मिलेगा 144। नाउ हमको एक बात पता है कि हमें 1 लाख से बड़ा नंबर चाहिए बिकॉज वी वांट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 लाख 10 लाख तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 10 लाख से बड़ा कोई नंबर हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो कोशंट आता है, आई एम सॉरी, ये जो 10 लाख है उसमें कुछ नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 10 लाख टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। और जब भी एडिंग वाला क्वेश्चन आता है तो ये क्वोशंट को देखना है, ये क्वोशंट का नेक्स्ट नंबर देखना है हमें, क्या है? 317। और 317 का जो स्क्वायर है वो निकालना है, वो आता है 100489। ठीक है, सो 489 जब इसमें ऐड करेंगे 10 लाख में तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6 डिजिट का सबसे लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर रेडी हो जाएगा। सो द लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज 100489। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस है। इनमें कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 में, बिकॉज यू जस्ट हैव टू अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फाइंड द स्क्वायर रूट, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 7744, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पहले एरिया दिया है स्क्वायर का, स्क्वायर का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो जो एरिया है ना तुम्हारा 7744, उसका स्क्वायर रूट निकालो और उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद तुम्हें साइड मिल जाएगी, वो साइड को 4 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द पेरीमीटर। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1104 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका लॉन्ग डिवीजन करो और रिमाइंडर जो आएगा दैट इज योर लीस्ट नंबर। फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। कैसे ढूंढोगे वो? तो तुम ये जो लीस्ट ये जो रिमाइंडर आया उसमें से सब्ट्रैक्ट करो और जो तुम्हारा कोशंट है, जो तुम्हारा कोशंट है, जैसे यहाँ पे कोशंट 87 था, वही तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर का आंसर होगा रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद। 1104 में से
जो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट होगी, वो जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज द कोशेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन ऑफ 1104। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7956 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। बिल्कुल थर्ड जैसा ही है फोर्थ वाला, फॉर योर प्रैक्टिस। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 6203 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आई एम सॉरी, लॉन्ग डिवीजन करो, और लॉन्ग डिवीजन में तुम्हें रिमाइंडर आएगी। कोशेंट को ऑब्जर्व करो, और ये जो 6203 है दैट विल लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द कोशेंट एंड स्क्वायर ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ द कोशेंट। मतलब कोशेंट के बाद वाले नंबर का जो स्क्वायर है उसमें से 6203 माइनस करोगे तो तुम्हें वो नंबर टू बी एडेड मिल जाएगा। ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर तुम वही क्वोशंट के नेक्स्ट वाले नंबर का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उसका स्क्वायर रूट क्वोशंट का नेक्स्ट वाला नंबर होगा, जो अभी हमने सॉल्व एग्जांपल में देखा था। सिक्स्थ वाला सेम फिफ्थ जैसा है। Find the greatest number of 6 digit which is a perfect square and find the square root of this number. Greatest number of 6 digit है 999999, उसका लॉन्ग डिवीजन करो और रिमाइंडर जो आएगी उसको सब्ट्रैक्ट कर दो 999999 में से, और जो भी आंसर आएगा दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और उसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज द quotient of the long division. Find the least digit of least number of 4 digit which is a perfect square. Least number of 4 digit है 1000, और फिर तुम्हें लॉन्ग डिवीजन करना है 1000 का, और फिर कोशेंट के नेक्स्ट वाला नंबर जो है उसके स्क्वायर में से 1000 को माइनस करना है। सो यू गेट द नंबर टू बी एडेड इन 1000 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। और फिर उसका स्क्वायर रूट तुम निकाल सकते हो विच इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द कोशेंट। इजी है। फाइंड नाइन्थ वाला, फाइंड द लीस्ट नंबर विच by which 69192 must be decreased, increased, multiplied and divided to make it a perfect square. This is a very nice question. देखो डिक्रीज्ड और इंक्रीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस वी कैन डू बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। बट मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड कैसे करोगे? मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, the least number by which 69192 must be multiplied and divided ढूंढने के लिए you have to do prime factorization of 69192, और जो भी फैक्टर पेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है उसको ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं 69192 को। ठीक है, इसको ध्यान से करना। सो एक्सरसाइज 3C कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। ठीक है। सो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू immediately start exercise 3C after watching this video, and please follow my instructions so that you get the correct answers. And I see that बहुत लोग मुझे होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे बिकॉज मैं फॉर्मल सबमिशन डेट नहीं डाल रहा हूँ। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि तुम्हें होमवर्क नहीं करना है। एज सुन एज यू वॉच द वीडियो तुम्हें होमवर्क स्टार्ट कर देना है, एंड यू हैव टू सबमिट इट टू मी। ओके। उसका जो फाइनल सबमिशन डेट है उससे पहले मेरे पास सारे होमवर्क आ जाने चाहिए प्रॉपर। कैन यू डू दैट मच? Okay, so I'll see you in the next video. Bye bye.